Good evening, students. Myself, Pratik Desai, डायरेक्टर काय विद्या प्राइवेट लिमिटेड. पिछले 20 साल से मैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ. These are my two favorite subjects. Today we are going to learn about change in profit sharing ratio, which is a part of partnership accounts in 12th standard, both in GSEB as well as in CBSE. So this is the topic, today's topic, change in profit sharing ratio. And this change in profit sharing ratio, whenever partners decide mutually, they can change their profit sharing ratio. Number one, when partners can change the ratio, they can change it mutually. At the time of admission of partners, also there will be the change in the profit sharing ratio. At the time of retirement of partner, and even at the time of death of the partner, there will be the change in the profit sharing ratio. May be possible. Okay, but these are the main three reasons because of which there will be the change in the profit sharing ratio. Now, whenever there is a change in the profit sharing ratio of the partners, there will be an end of partnership. I am talking about partnership. I am not talking about the firm. Whenever there will be the change in the profit sharing ratio, there will be the end of partnership. Partnership is just an relationship. So पुरानी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, नई रिलेशनशिप विल बी इन एग्जिस्टेंस. ठीक है. सो पुरानी पार्टनरशिप खत्म होती है, फर्म विल कंटिन्यू विद दैट बिजनेस. बिजनेस बंद नहीं होता है, खाली रिलेशनशिप में चेंज आता है. पुरानी रिलेशनशिप खत्म, नए सिरे से पार्टनरशिप करेंगे इन नए रेशियो में. Whenever there is a change in the profit sharing ratio, there must be some accounting treatment. Now, what are the accounting treatments should be considered at the time of change in profit sharing ratio? We're going to carry on with that. Number one, we need to find out gaining ratio and sacrificing ratio. First of all, we need to find out how many partners are going to gain और how many partners are going to sacrifice. ठीक है, वो फाइंड आउट करेंगे. उसकी फॉर्मूला हम लोग बाद में देखते हैं क्या होती है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट गेनिंग रेशियो एंड sacrificing ratio of the partners. ठीक है. Second thing we need to go for it is we need to distribute all the old reserves and profits which are already in the books of accounts. We have to distribute that old reserves and profits in old ratio to the old partners. ठीक है. So old reserves in old ratio, old partners in old ratio. ठीक है. If there is a losses, accumulated losses, then also we are going to distribute in old ratio. ठीक है. Then if any accumulated losses like advertisement suspense account, preliminary expenses, that also we're going to distribute in old ratio. The one more thing is if there is a goodwill, existing goodwill, then also we're going to distribute amongst the partner in old ratio. That will be distributed in old ratio. Now the fourth thing we need to consider here at the time of change in profit sharing ratio is we're going to reassess all the liabilities and revalue all the assets. For that we're going to prepare revaluation account. ठीक है. ये चारों चीज हमें आगे के 4 चैप्टर में करनी होती है. एक तो यही है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, थर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, फोर्थ एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर. ये चारों केस में हमें ये सारी चीज करनी है. वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो. देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द रिजर्व्स एंड द प्रॉफिट्स इन ओल्ड रेशियो, एंड देन आफ्टर ऑल इवन ओल्ड losses are there, that also we need to distribute amongst the partner. Then existing goodwill, if it is there in the books of accounts, we're going to distribute amongst the partner. Then revaluation of all the assets and reassessment of all the liabilities.
इतनी चीज हमें करनी है हर बार, ठीक है। नाउ वी कैन मूव टूवर्ड्स द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो एंड sacrificing ratio. Now gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio, and sacrificing ratio is old ratio minus new ratio, ठीक है। So first of all we need to find out these old ratio and gaining ratio. Why we need to find out that I can explain later on, ठीक है। Then sometimes partners revalue their goodwill at the time of change in profit sharing ratio, ठीक है। सो वो गुडविल की ट्रीटमेंट भी हम लोग लेटर ऑन देखेंगे, बट इसके बाद हमें सबसे पहली चीज देखनी है कि व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीवैल्यूएशन ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। फॉर दैट वी गोइंग टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। नाउ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, इट्स एन अकाउंट, इसका नेचर होता है अगेन इट्स एन नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नाउ वेन एवर वी गोइंग टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज करना है। और जब भी असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी it will be credited to the revaluation account because it's a gain to the business, and whenever there is a decrease in the value of assets we're going to debit it because there is a loss to the firm, ठीक है। same thing when there is an increase in the liability, when we're going to reassess liabilities, there might be happens that liability will be increased. If it is increased, there will be a loss to the firm. In that case, we're going to debit the revaluation account. If the liability decrease, in that case, we're going to credit the revaluation account. Done. So I'm going to write it down here. If increase in value of liabilities, increase in the value of liabilities, क्या होगा? Increase in the value of liabilities, वो डेबिट हो जाएगा, and decrease in the value of assets, वो भी डेबिट हो जाएगा, and vice versa opposite. If there is an increase in the value of asset, वो क्रेडिट हो जाएगा, and decrease in the value of liability, वो भी क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों केस में क्या होगा, गेन हो रहा है बिजनेस को। सो यही चीज रखनी है और हमें ये आगे के चारों चैप्टर में अकाउंट बनाना ही है। सो विदाउट फेल ये दिमाग में डाल दो, इंक्रीज इन द असेट्स वैल्यू ऑफ असेट्स क्रेडिट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी क्रेडिट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डेबिट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स डेबिट ही करना है। एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री बहुत बार पूछी जाती है बच्चों। इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर द अकाउंट दे आर गोइंग टू आस्क एंट्री। सो इन दैट केस लायबिलिटीज में क्या होगा, देखो क्या हो रहा है, वेन एवर वी डू आर गोइंग टू डेबिट assets, then in that case revaluation account is debited. So entry will be revaluation account debit to assets account, revaluation account debit to liability account if it is increased. अगर assets की वैल्यू बढ़ी है तो क्या होगा, revaluation क्रेडिट हो रहा है, so asset account debit to revaluation account. If liability decreased, then liability account debit to revaluation account. This is the case. एंट्री बहुत ईजी है, दिमाग में रखना है। असेट हमेशा इंक्रीज होती है तो वो डेबिट ही होता है, और लायबिलिटीज हमेशा इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होता है। तो ऑपोजिट अकाउंट रिवैल्यूएशन आएगा, वो याद रखना है अपने को, ठीक है। फिर से एक बार समझा रहा हूं, असेट्स अकाउंट, अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हुए तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑपोजिट, इफ असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो क्या करना है, रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो लायबिलिटी तो हमेशा क्रेडिट होता है, सो लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट ही होना है, तो डेबिट क्या होना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। आपको एग्जाम्पल में बहुत सारी एडजस्टमेंट दी होगी, वो एडजस्टमेंट के बेस पे ये सॉल्व करना रहता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई कि हमें ओल्ड प्रॉफिट और लॉस, ओल्ड रिजर्व्स, तीनों चीजों के बारे में भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देनी है। तो अगर ओल्ड रिजर्व्स है,
इफ इट इज रिजर्व और प्रॉफिट्स, तो उसको हमें क्या करना है, ये रिजर्व्स और प्रॉफिट जो है उसका हमेशा बैलेंस क्या होता है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस ही होता है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, हमें उसको क्लोज कर देना है, बिकॉज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनरशिप गोइंग टू एंड, नए सिरे से नई पार्टनरशिप होने वाली है। तो पुराना जो रिजर्व है, पुराना जो प्रॉफिट है, वो पुराने पार्टनर की मेहनत का नतीजा है, और वो भी उन्होंने पुराने रेशियो में मेहनत की थी, तो उसी इसीलिए उसको भी पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको क्लोज कर देना है। सो उसका बैलेंस क्रेडिट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा। सो रिजर्व अकाउंट डेबिट, और यू कैन से प्रॉफिट दिया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, क्रेडिट बैलेंस, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इफ इट इज लॉस, तो उसकी उल्टी एंट्री, अगर लॉस दिए हैं आपको पुराने, लॉसेस में नॉर्मली क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया होता है, सो प्री एंड अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और पार्टनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर कोई पुराना लॉसेस और एक्सपेंसेस दिया है, एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस है, लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है, तो उसको भी हमें पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अगर लॉस है तो P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड टू अगर कोई एक्सपेंस दिया है लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज दीज आर द लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उसको भी हमें पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। यू कैन से डिस्ट्रीब्यूट नहीं, बट पार्टनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उसको राइट ऑफ करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ किया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ किया। नाउ व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में हुआ था, इसके लिए उसको एक साल में हम क्या करते थे, हम लोग एक साल में डेबिट नहीं कर सकते थे, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम स्प्लिट कर रहे हैं और राइट ऑफ कर रहे हैं। बट अभी एक्यूमुलेटेड हो चुका है, हम लोग रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो उसको क्या करना है, उसको हमें सेम टाइम पे एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर अकाउंट डेबिट करके, ठीक है। इसके बाद जो है वो गुडविल की ट्रीटमेंट है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। नाउ इफ यू वांट टू गो फॉर मोर इन if you want to learn this chapter in more detail, we can go for in detail, or we can go for some more examples. We can solve here examples, but for that you need to subscribe the channel, and all the best for that. Thank you.